बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आई वांट टू गो थ्रू एन इंट्रोडक्शन टू अज़ूर प्रिविलेज आइडेंटिटी मैनेजमेंट। इसको हम पिम भी बुलाते हैं। पिम, ठीक। So basically the service is used to control the access permission for privileged users. You have a global administrator. इसने एसक्यूएल का डेटाबेस क्रिएट किया है और इसने वर्चुअल मशीन भी क्रिएट की है। In your department, you have a user and that user has a privileged access of the resources in Azure. This user has the ability to start and stop the virtual machine. And let's say कि इस user के पास SQL का डेटाबेस है, उसको डिलीट करने की भी परमिशन है, ठीक है। तो ये जो यूजर है इसके पास हाई लेवल प्रिविलेज है when it comes to the permission for your resources in Azure, ठीक। ये प्रिविलेज यूजर ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर ने यूजर को रिक्वायर्ड परमिशन दी और आफ्टर सम टाइम, फॉर एग्जांपल 1 or 2 months, इस यूजर का किसी और डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। So now we don't have the user that is part of your department. और ये ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेक श्योर करे कि परमिशन ऑफ दैट स्पेसिफिक यूजर शुड बी रिमूव्ड। तो अगर इसको प्रिविलेज है, तो अगर ये चला जाता है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटर इसको मेक श्योर करे कि इसकी ये परमिशन ले ली जाए। ये तो एक यूजर की बात हो रही है, लेकिन जब ज्यादा यूजर हो जाएंगे तो कॉन्सेप्ट जो है कि उसकी प्रिविलेज को रिमूव कर दिया जाए, वो बहुत कम ही इम्प्लीमेंट हो पा रहा है। So assigning permission is very easy, but sometimes the administrator might forget to go ahead and remove the permission for the privileged user. Sometimes भूल जाता है। In this scenario, you can actually make use of PIM, which is Azure AD Privileged Identity Management. So over here, you can actually make a user eligible to go ahead and take an elevated role जो यूज हो सकता है रिसोर्सेज को एक्सेस करने में। Or you could also use associated privileged identity management to allow user to go ahead and assume role in Azure AD. So is this one? Oh, I need to write Azure AD roles. Okay. So let's say you want the user to go ahead and assume the role of a security administrator instead of actually directly assign the role into the user. So let's say you want the user to go ahead and assume the role of a security administrator instead of actually directly assigning the role onto that user. The administrator can make use of Azure Privileged Identity Management to assign a role. So we will understand more on this concept as we will go into the lab. Let's go through a few notes on the Azure Privileged Identity Management, which is I put that one down here. So using Azure AD Privileged Identity Management, you can carry out the following activities. You can provide just-in-time privileged access to Azure AD and Azure resources. So instead of actually providing a one-time complete access onto Azure AD or Azure resources, you can provide just-in-time access by using Azure Privileged Identity Management. You can assign time-bound access to the resources using start and end dates. You can also ensure that approval is required to activate any of these privilege zones. You can also enforce multi-factor authentication to activate any zone. You can also ensure that you get notifications when privilege roles are activated. You can also conduct access reviews to ensure user still require the roles. Please note that this feature requires the use of Azure AD Premium P2 licenses. Let's move on the lab and let's see
how we can implement this. लैब की तरफ आते हैं। सबसे पहले मैं एक्टिव डायरेक्टरी में जाऊंगा। अभी मैं लॉगिन हुआ हुआ हूँ टेस्ट एक्स 001 से, जो कि मेरा ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर है। मैं यूज़र में आता हूँ, मैं इससे लॉगिन हुआ हुआ हूँ। टेस्ट एक्ट 2 जो है वो मेरा यूज़र है। लेट्स सी के इसको कोई रोल असाइन हुआ हुआ है कि नहीं, नहीं हुआ। नो रोल has been assigned to this user. So now let's say कि टेस्ट एक्ट 2 को यूजर एडमिनिस्ट्रेटर का रोल चाहिए। अभी उसको नहीं चाहिए, मे बी आफ्टर 1 वीक उसको चाहिए होगा। जब उसको चाहिए होगा देन इट विल, वो क्या करेगा कि वो रोल को एक्टिवेट कर लेगा। अभी हम क्या करेंगे कि अभी हम उसको रोल रोल के लिए एलिजिबल कर देंगे बाय यूज ऑफ प्रिविलेज आइडेंटिटी मैनेजमेंट। सो दिस इज द मोर सिक्योर वे टू असाइन द रोल टू द यूजर। अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे प्रिविलेज आइडेंटिटी मैनेजमेंट में। ठीक, यहाँ पे आए, यहाँ पे टास्क है, यहाँ मैनेज है। हम मैनेज में जाएंगे, मैनेज एडी रोल। ठीक, यहाँ पे आए। यहाँ पे आने के बाद हम असाइन है, एक्टिवेट है, अप्रूव है, ऑडिट है। हम असाइन करेंगे क्योंकि अभी हम एलिजिबिलिटी को असाइन कर रहे हैं। ठीक है, कौन सा रोल असाइन करना है हमें? यूजर एडमिनिस्ट्रेटर का रोल असाइन करना है, यूजर एडमिनिस्ट्रेटर का। और यहाँ पे ऐड असाइनमेंट। अब हम देख रहे हैं कि हम सिलेक्ट रोल यूजर एडमिनिस्ट्रेटर आ रहा है, स्कोप टाइप डायरेक्टरी आ रही है, सिलेक्ट मेंबर कौन सा था, टेस्ट टैग 2। ठीक, इसको असाइन किया। देखते हैं यहाँ पे और क्या चीज़ है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट एंड डायरेक्टरी। नो आई जस्ट वांट टू डू द डायरेक्टरी, होल डायरेक्टरी। तो अब यहाँ पर आए, यहाँ पे हमने नेक्स्ट किया। नेक्स्ट में सेटिंग है एलिजिबल, एक्टिव, परमानेंटली एलिजिबल। अगर मैं ये परमानेंटली एलिजिबल कर दूंगा तो ये कोई टाइम पीरियड असाइन नहीं होगा, ये जब चाहे आएगा और ये इसको यूज कर लेगा। तो मैं देता हूँ कि भाई टुडे इज 24, तो ये जो है वो 24 से नेक्स्ट पूरा ईयर नहीं कर देता हूँ और 24 कर देता हूँ। तो 24 में ये ओनली फॉर 1 मंथ। अगर मैं एक्टिव कर देता हूँ सो रोल डायरेक्टली उसको असाइन हो जाएगा जस्टिफिकेशन के साथ। आपने डायरेक्टली असाइन कर दिया है उसको। मैं उसको असाइन नहीं कर रहा, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं उसको एलिजिबल करूँ और जब उसकी मर्जी हो वो आके अपने आप को खुद ही एक्टिवेट कर ले। ठीक, तो अभी मैं कर रहा हूँ, 23 दोबारा हो गया। इसको मैं चेंज कर देता हूँ, नॉट दैट, अप्रैल 24 ओनली फॉर अ मंथ। ठीक, एंड असाइन। ठीक, असाइन कर रहा है रोल को, रोल टू द मेंबर, ये हो गया। ठीक है, अभी मैं अपडेट भी कर सकता हूँ, रिमूव एक्शन, ये जब देख देंगे बाद में। तो अभी मैं ये करता हूँ, अभी मैं जाता हूँ दोबारा होम में, एक्टिव डायरेक्टरी, यूजर, यूजर वाज टेस्ट टेक 2। मैं ये कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं इसको विंडो में खोलता हूँ। लेट्स डू इट पोर्टल डॉट पोर्टल डॉट azure, कंट्रोल वी से लॉगिन होना है। अब देखते हैं, मैं लॉगिन हो गया हूँ। गुड, ओके। सो नाउ क्योंकि मैं अभी मुझे वो रोल चाहिए था तो अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे सर्च कराता हूँ प्रिविलेज आइडेंटिटी मैनेजमेंट। अब मैं जाता हूँ माई रोल के अंदर, एलिजिबल असाइनमेंट आ रहा है, अभी एक्टिव नहीं हुआ, ये मुझे एक्टिवेट करने को बोला, और अगर ये जब एक्सपायर्ड होगा तो एक्सपायर्ड में आ जाएगा। तो अभी ये एलिजिबल में है। जब मैं एक्टिवेट करूंगा तो वैलिडेटिंग रिक्वेस्ट, एडिशनल वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड, क्लिक टू कंटिन्यू, रोल्स कस्टमर ड्यूरेशन आवर्स 8। लेट्स सी एडिशनल वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड क्या चीज मांगता है। मोर, दिस एमएफए, इट इज आस्किंग फॉर एमएफए।
तो अगर मैं चाहूँगा तो मैं एमएफए सेट कर सकता हूँ। अदरवाइज मैं एक और चीज़ भी कर सकता हूँ कि मैं इसको बैक करूँ, अगर ये मुझे करने दे। ठीक, यहाँ पे आया, मैं जाता हूँ अपने कौन से वाले में, इधर, ये मेरा टेस्ट एक्स 01 है। ठीक, मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं आता हूँ प्रिविलेज आइडेंटिटी मैनेजमेंट में, और मैं जाता हूँ अजूर एडी रोल में। ठीक, अब अगर रोल्स में आ गया, मैं रोल के अंदर आता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ रोल्स में और मैं यहाँ सर्च करता हूँ यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर, इसमें आ गया। तो अभी आप ये देखें, यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर असाइनमेंट हूँ, तो मैंने यहाँ से जाके असाइन किया था। ठीक है, ये आया था। लेकिन अगर मैं इसी तरह रोल सेटिंग में चला जाता हूँ, तो मैं ये यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर की रोल सेटिंग के अंदर हूँ मैं। तो एक्टिवेट मैक्सिमम ड्यूरेशन आवर्स 8 आवर्स, रिक्वायर्ड जस्टिफिकेशन ऑन एक्टिवेशन, यस, रिक्वायर्ड टिकट इन्फॉर्मेशन ऑन एक्टिवेशन, नो। अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ ऑन एक्टिवेशन रिक्वायर अजूर एमएफए, यस। तो अगर आप जब याद है, जब मैं पीछे अभी जा रहा था यहाँ पे, तो इसने मुझसे मांगा था, जब मैं एक्टिवेट कर रहा हूँ तो ये देखिए वैलिडेटिंग रिक्वेस्ट कर रहा है, और ये मुझसे बोल रहा है मोर इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड, क्लिक टू कंटिन्यू, दिस इज आस्किंग फॉर एमएफए। अगर मैं पीछे जाता हूँ दोबारा, तो मैं इसको एडिट करता हूँ, और एडिट करने के बाद जो कि मेरा अजूर एमएफए आ रहा है कि रिक्वायर, मैं इसको नन कर देता हूँ। और अगर मैं चाहूँ तो ये एक्टिवेशन मैक्सिमम ड्यूरेशन जो है वो 8 आवर्स। सो जब मैं एक्टिवेट करवाऊंगा, इसका मतलब है कि वो ड्यूरेशन जो है वो खाली 8 आवर्स के लिए ये मुझे यूजर एडमिनिस्ट्रेटर रोल मिलेगा, और जब 8 आवर्स खत्म हो जाएंगे तो यूजर एडमिनिस्ट्रेटर का रोल मुझसे वापस ले लिया जाएगा, एंड देन आई विल अगेन बी एलिजिबल टू गेट इट अगेन, बट इट विल नॉट बी एक्टिवेटेड। ठीक है, एक्टिवेटेड द, तो अभी यहाँ पे मैं नन कर रहा हूँ रिक्वायर्ड टिकट इन्फॉर्मेशन, इसको मैं इसी तरह रहने देता हूँ, और मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। सही, जस्ट फॉर सी टाइम, थोड़ा सा टाइम लेगा अपडेट होने में। ये जस्ट मैं शो कर रहा हूँ कि अगर मैं चेंज करना चाहूँ एमएफए को तो मैं वो भी कर सकता हूँ। ठीक, अब अगर मैं दोबारा इधर आता हूँ, यहाँ से मैं, मुझे लगता है साइन आउट, साइन इन करना पड़ेगा, नहीं, ठीक है, उसने वहाँ से उठा लिया। तो अब ये मुझसे देखें, कोई नहीं मांग रहा कि मुझे कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये मुझसे डायरेक्ट लेके जाएगा। ठीक है, स्टार्ट टाइम, तो मुझे बोल रहा है, अगर मैं बोलूँ नहीं भाई, इतने से इतने बजे मुझे मुझे चाहिए, और मैं अपने आप को खुद भी कर सकता हूँ। तो अभी मैं यूँ कर रहा हूँ कि ड्यूरेशन जो है अभी जो मुझे 8 आवर्स के लिए चाहिए, रीज़न आई नीड इट, ठीक है, नॉट नीडेड, इज नीडेड। ठीक, एक्टिवेट कर दिया मैंने। अब ये स्टेजेस हैं इसकी, प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट एंड एक्टिवेटिंग योर रोल, वैलिडेटिंग दैट योर एक्टिवेशन इज सक्सेसफुल, एक्टिवेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ठीक, अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, ये खुद ही रिफ्रेश करेगा पेज को और मुझे वहां लेके जाएगा। ठीक, तो अब अगर मैं यहाँ जाता हूँ होम में, एक्टिव डायरेक्टरी में आता हूँ, यहाँ से अभी मैं 002 में ही हूँ, मैं यूज़र पे आया हूँ, और मैं यूज़र में आके, क्योंकि मैं यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर का रोल मुझको मिल चुका है, इसलिए न्यू यूज़र क्रिएट कर सकता हूँ। जब अगर यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर का रोल नहीं होता तो मैं यूज़र क्रिएट नहीं कर सकता। ठीक, अब मैं जाके दोबारा देखा कंफर्म कर लेता हूँ कि टेस्ट टैग 2 में गया और मैं असाइन रोल में गया हूँ, तो यहाँ पे एज ए यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर में आ रहा हूँ कि नहीं। एंड टाइम भी लिखा हुआ आ रहा है कि मैंने लिया है, ये 11:02 हो रहे हैं एट द मोमेंट, यहाँ पे पीएम के, सुबह 7:02 पे एएम ये मुझसे वापस ले लिया जाएगा। ठीक है, तो ये हुई प्रिविलेज आइडेंटिटी मैनेजमेंट। गो बैक टू प्रिविलेज identity management, and if I'll go in the role, you can see access reviews. So जो रोल है उसका हम एक्सेस, जो हमने रोल असाइन किया था उसका हम एक्सेस रिव्यूज भी कर सकते हैं यहाँ पे सेटअप।
सही। मैं यहाँ पे मैंने एक्सेस रिव्यू किया, मैं गया हूँ न्यू के अंदर, और मैं यहाँ पे रिव्यू नेम दे रहा हूँ, फर्ज करें पिम एक्सेस रिव्यू यूजर एडमिन। ठीक, जो मैंने यूजर एडमिनिस्ट्रेटर दिया, एंड ये देते हैं स्कोप और यूजर इन ग्रुप, सिलेक्ट प्रिविलेज रूल, यूजर एडमिनिस्ट्रेटर, डन, असाइनमेंट टाइप ऑल एक्टिव एलिजिबल असाइनमेंट। देखते हैं रिव्यूअर्स जो हैं वो सिलेक्टेड यूजर्स हैं, मेंबर लेट्स सी सिलेक्टेड यूजर, और रिव्यूअर जो है वो मैं टेस्ट टैग 1 को दे देता हूँ। एंड मैं यहाँ पे कंप्लीशन सेटिंग भी देख लेता हूँ, ऑटो अप्लाई रिजल्ट ऑफ द रिसोर्स डिसेबल कर देगा इफ रिव्यूअर्स डोंट रिस्पॉन्ड, एडवांस सेटिंग ऑल इनेबल है, आई डोंट नीड टू चेंज इट, लेट्स टू स्टार्ट। ठीक है, ये हो गया है। अब देखते हैं रिव्यूअर जो है वो मैं खुद हूँ, तो अभी टेस्ट टैग 1, तो ये कब आता है, ये रिव्यूअर आई है, अभी इनिशियलाइजिंग हो रही है, देखते हैं। सो रिव्यू जो है अब ये एक्टिव हो गया है, जो कि मैंने बनाया था। अब अगर मैं इसमें जाता हूँ और मैं ये देखता हूँ कि रिव्यू जो है वो मैंने 1 टाइम के लिए किया था, और एक्सेस रिव्यू पीरियड 24, एक दिन के लिए था। सही, नॉट रिव्यूड अप्रूव एंड दिस, तो ये असाइन हुआ है, ये एक्टिव आ रहा है। लेट्स सी, अब पीछे चलते हैं प्रिविलेज यूनिट में और देखते हैं कि इसको रिव्यू करते हैं, इस रोल को। ठीक है, अभी हम देखते हैं इसको अप्रूव करना है या अनअप्रूव करना है, तो मैं अब इससे जो है यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर का ले लेता हूँ। मैं इसको अप्रूव नहीं करता, अगर मैं इसको डिनाई कर देता हूँ, डिनाई, I just want to do deny, let's see, update review result, test tag is denied with the user administrator। अभी मैंने डिनाई कर दिया है, ठीक, लेकिन अभी भी ये एक्सेस जो है ये अभी भी ऑन है, ये स्टॉप नहीं हुआ है। ठीक, अगर मैं अभी वापस पीछे जाता हूँ और ये जैसे मैंने को पहले ही बताया था जब एक्सेस रिव्यू किया था कि इस एक्सेस रिव्यू को स्टॉप होना ज़रूरी है, देन यू कैन सी दैट थिंग। स्टिल अभी मैं इसमें चेंजिंग कर सकता हूँ, मैंने डिनाई कर दिया है बट स्टिल इज एक्टिव। अब मुझे इसको स्टॉप करना होगा, या फिर ये अगर खुद अपनी टाइम पीरियड के बाद जो स्टॉप हो जाएगा देन इट विल टेक अफेक्ट। तो मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। ठीक, मैंने स्टॉप कर दिया है, स्टॉप करने के बाद ये रिव्यू मेरा स्टेटस कंप्लीट हो गया है, लेकिन ये अभी भी अप्लाई नहीं हुआ है। यू नीड टू प्रेस अप्लाई बटन, देन इट विल टेक अफेक्ट। रिक्वेस्ट अप्लाई एक्सेस रिव्यू रिजल्ट फॉर पीएम दिस वन सक्सेसफुली रिक्वेस्टेड। ठीक है, अब ये इट विल टेक लिटिल व्हाइल टू टेक अफेक्ट, बट दिस टाइम अभी आप देखिए मैं टेस्ट टैग 2 में हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ, अगर मैं दोबारा जाता हूँ टेस्ट टैग 2 में जाता हूँ तो असाइन रोल, एक्सपायर्ड असाइनमेंट में भी कोई नहीं है, एलिजिबल असाइनमेंट के अंदर भी कोई नहीं है, क्योंकि मैंने वहाँ से जो पिम से असाइन किया था वो मैंने एक्सेस रिव्यूज के जरिए वापस ले लिया। ठीक, क्योंकि ये हमारी लैब यहाँ पे कंप्लीट हुई। Please don't forget to subscribe my channel and don't forget to press the bell icon so next video when I upload the next video you'll get the notification.